नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं बोलकर। दोस्तों, मेरा नाम शेख मोहम्मद अली, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र साथ में बिजनेस कोच हूँ। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आशा इसी बहुत चीज़ों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को। दोस्तों, ऐसा ही ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में 100% लाइफ चेंज करेगी बोलकर आशा करता हूँ। और वीडियो देखने से पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अपना इस यूट्यूब चैनल को लाइक करो और शेयर करो और दोस्तों को सब्सक्राइब करो। हम बहुत परेशानियां को ढूंढते हैं, सही है। जो इंसान को ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलता है तो इंसान, हमारे को हाथ पैर सभी चल रहे हैं, तो मेरे को टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी एक औरत है तो वो क्या चला रही है आप देख सकते हैं। इंग्लिश में होता वीडियो, लेकिन उसको ऑब्जर्व करो, उसका पिक्चराइजेशन देखो। Just 3 years ago, she had never been in an airplane because of a fear of flying. Now 25-year-old Jessica Cox is a licensed pilot, which is pretty incredible considering she was born with no arms. Let's start with her story of triumph and courage. This pilot is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet. From putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. So Jessica decided to face her fears head on and got a pilot's license. She talked with our Jim Murray. How is it possible to fly a plane without hands? You know, it's even hard for me to believe when I'm talking about it. You just do it. Jessica invited us up for a spin high above the Arizona desert. Her lucky flying shirt reads, "Look, Ma, no hands." She showed us how she controls her plane. And I would have my right foot right here in the yoke, and my left foot here on the throttle. And I'm using my big toe to push on the push-to-talk switch. So you feel perfectly safe? I do, yes. Is there any issue of safety at all? There's not. After, an hour, just like driving with a car after an hour or so, we got into it and realized she has no arms. Our cameras were mounted inside the small plane to see Jessica in action. Watch as she takes off. Jessica uses her left foot to control the throttle. Then her right foot pulls out the wheel as she lifts off. It looks scary, but she does it like a pro. And watch, after she makes a picture-perfect landing, she stretches her leg and opens the cockpit windows. How was it flying? That was fun. Good for her. Doctors have never been able to come up with an explanation as to why Jessica was born without arms. Now take a क्या इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला है? जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई सभी लोग मुंह खोलो। मुंह को चाबी डाल कर आए? नहीं। चाबी डाल कर आए क्या? फिर बात करिए ना। अशा की असं काही नाही, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वेरी गुड। उनको दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो पैर से गाड़ी चलाते हैं। मतलब उससे आप क्या सीखे? हमारे पास हाँ, हाथ पैर है तो हम क्यों नहीं कर हाँ। सकते? अच्छा, जब कौन सी भी मुसीबत आ गया हो तो उसका सामना करने की ताकत खुद में होनी चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ, तो इस वीडियो से हमको ये सीखने मिला, आप सब लोग बहुत अच्छा बताए। तो हम लोग हमारे अंदर की कमियां ढूंढते हैं,
अभी बोला है मैडम को, आपका शुभ नाम मेरे को मालूम नहीं है, वर्षा है ना? वर्षा मैडम। तो अभी मैडम को बोला इधर आकर बात, तो उनको डर आ गया, मतलब क्या बात करना, वो डर हो गया। तो मैं बोल रहा चंद लोगों को बोलने लगे आप कुछ भी करने लगो। तो हमको टू व्हीलर चलाने में भी डर होता है। आज हमारे को आंख अच्छा दिख रहे, कान अच्छा सुनाई दे रहा है, बांस देखने का ताकत है, बात करने का ताकत है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब हमारा शरीर बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद हम क्या बोलते हैं, हमसे कुछ नहीं है, हमारे को भगवान क्यों इतना परेशानी दिया, हमारे नसीब में नहीं है। क्या ये सच बात है? देखो ये यहाँ पर एक औरत है, लड़का नहीं है, वो एक लेडी है, उसका हाथ नहीं है, वो शायद बाइक नहीं चलाई, क्या 4 व्हीलर नहीं चलाई, वो हवा में उड़ने का हवाई जहाज चला रही है। इसका नाम है जेसिका। मतलब हम रिसोर्सेस को ढूंढना नहीं है, हमारे अंदर रिसोर्सेस है। दुनिया में आप सेलिब्रिटी बनना है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन उसको ढूंढने जाना है। हम अपॉर्चुनिटी को देखे नहीं है तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है नहीं। हम बोलते हैं अच्छा यार हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप घर से बाहर निकले तो अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है। आप उस चीज को लिए पूरा से पूरा अपना खाइनात लगा दिए तो आपको कितने वे चाहे उतना वे आपको मिलेगा। लेकिन हम वो रिसोर्सेस को नहीं देखते, वो देखते सिर्फ हम 1 बार 2 बार कोशिश करते, तीसरी बार कोशिश करते, चौथी बार कोशिश करते, 10वां बार मेरे से नहीं होता तो हाथ छोड़ देते। ये औरत भी फ्लाइट चलाने में 1 ही दिन में हो गया, इसके लिए कितने बार गिर के रहती, विचार करो। पियानो बजा रही है, हम हाथ रहने के बावजूद हमको बजाना नहीं आता। कुंफू कर रही है, कराटे कर रही है, मोबाइल ऑपरेट कर रही है, ये सब चीज करने में उसको वक्त लग गया। उसके लिए वो हार नहीं मानी, वो विचार करी मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मैं खुद के ऊपर डिपेंड होना। जो मेरे को प्रॉब्लम दिया तो मैं कुछ करके दिखाने के लिए दिया प्रॉब्लम भगवान ने। जब भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आया तो लोग डर जाते हैं, सच बात है। लेकिन प्रॉब्लम से आगे आपको जिंदगी में एक नया पहचान बनाएगा। जिस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन करते गए उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज मानो। क्या मानते हैं? जब आप प्रॉब्लम को चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, यार ये तो मेरा प्रॉब्लम है लेकिन ये मेरे लिए चैलेंज है, आप चैलेंज एक्सेप्ट करें ना, वो 100% आपका प्रॉब्लम के आगे बाद होने वाला रिजल्ट का ना, उसमें आप निकल कर बाहर आते हैं। क्या होकर निकल कर बाहर होते हैं। बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूँ कोई भी इस फील्ड में इस दुनिया में कोई इंसान सक्सेस हुआ तो एक ही बार सक्सेस नहीं हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन कल सार बताए थे, बल्ब को आविष्कार करने में 1000 बार फेल हुआ था। पहला 10 बार नाराज हुआ, लेकिन बार बार फेल होने से वो क्या सोचा था, मेरे से नहीं होता सोचा है नहीं। लेकिन वो लगातार काम करते रहा उसके ऊपर, लेकिन फल मिला ही नहीं। जिस दिन आप कोशिश करना छोड़ देंगे उसी दिन आपका फेल्यूर तय है। फेल्यूर इसको बोलते, मैं एग्जाम में पास हो गया तो फेल्यूर नहीं है, मैं दोबारा एग्जाम अटेंड नहीं किया ये बड़ा फेल्यूर है। मेरी बात समझ में आया? मैं एग्जाम फेल हुआ तो मेरी बात ये में फेल्यूर होना गलत बात नहीं है, तो मैं दोबारा उसके लिए अटेम्प्ट नहीं किया, यहां पर फेल्यूर है। ऐसा ही हम भी कुछ भी करने लगे, शायद आज आप मेरे साथ बिजनेस करने लगे, बिजनेस में आपको एक बार में सक्सेस नहीं होते हैं। शायद अंबानी भी देखो, चाहे कोको कोला कंपनी का हिस्ट्री देखो, 2 बार दिवाला उठाई, कितने बार? आप अमिताभ बच्चन जानते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में आया 5 साल तक उसको एक फिल्म हिट नहीं है। उसको बोले थे इतना ऊंचा इंसान है, इसका आवाज है कि अलग ही आता, इसको कौन लेगा? लेकिन वो शोले पिक्चर से आज बॉलीवुड का स्टार है। जितने भी साल हो आने वाले पीढ़ियों को वो एक स्टार बन जाएगा। क्या सच बात है? सचिन तेंदुलकर आप जानो तो इंसान, अरे ये तो छोटा है, इसका बहुत लोग बोलते हैं यार ऊंचा नहीं है, बॉल को कैसा खेल सकता, गाली दिए लोग, लेकिन वही इंसान क्रिकेट का गॉड बना। सही है? बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूँ अंबानी भी हो, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां चला रहे हैं। आज संजय गोदावरी हो, पहला दिन भी उसका ग्राफ बड़ा नहीं हुआ, वो गिर गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया।
जमीन पर उठाकर मारे, फिर भी वो, फिर मैं उठूंगा, उठकर खड़ा हुआ, आज उतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया। इसीलिए हम फेल्यूर को फेल्यूर बोलकर एक्सेप्ट नहीं करना है, फेल्यूर को हम एक चैलेंज मानना है। फेल्यूर हुआ तो किसी कारण की वजह से, उसको आइडेंटिफाई करो पहला, फिर उसका नेक्स्ट काम करते समय वो कारण, वो प्रॉब्लम, वो सोल्यूशन, वो गलती ना होने का देखना है, जब भी आपको सक्सेस मिलता है। समझ में दोस्तों मेरी बात? तो आपका ड्रीम भी रखिए। मैं बोलता हूँ जब तक आप सपना नहीं रखते तो आप इस बिजनेस में, कोई भी फील्ड में जाओ, कहां पर भी जाओ, आज जैसे है 20 साल के बाद भी वैसा ही रहते हैं। अगर कुछ बदलाव आता ही नहीं, मैं 20 साल के बाद भी आपको, मैं मुलाकात हुआ था जिंदा पर इस धरती पर है तो आप मेरे से मुलाकात करो। आज जिस कंडीशन में आज है तो 20 साल के बाद भी यही रहते हैं। मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे मम्मी पापा, 20 साल पहले जो जिंदगी है आज भी हुई है। कोई 20 साल में कोई इंसान अंबानी बना, कोई इंसान करोड़पति बना, कोई इंसान अरबपति बना, लेकिन मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं बने? मेरे पापा 30 साल 40 साल काम करे, लेकिन जैसा जिंदगी है वैसा ही चला। क्या कुछ आगे हुआ? कारण उनको कुछ आगे का सोच नहीं है। वो आए, काम करके लेकर आए, 500 400 खाए, पेट भराए, हो गया। आगे का इस धरती पर क्यों आए बोल तो उनका मकसद मालूम नहीं है। अगर हम भी ऐसा ही विचार किए तो आप भी आने वाले 20 साल के बाद भी देखो, आज अपने अंदर ड्रीम नहीं है, अपने अंदर सपना फिक्स नहीं है, तो आज जैसे है अगले 20 साल के बाद वैसे रहेंगे। मैं बेट करता हूं आपको, मैं 1 करोड़ का बेट करके देता हूं। मैं 1 रुपया ने 1 करोड़ बेट करता आपसे। अगर आज आपके अंदर ड्रीम नहीं, आपका अंदर सपना नहीं है, तो आज कैसा है 20 साल नहीं, आप उम्र खत्म होने को मरने के पहला दिन भी आप वैसा ही जीना जीते हैं। आज आपके घर में पैसों की तंगी चल रहा है, तो मरने समय भी आपके पास पैसों की तंगी होता है। और आप खाट पर गिरे, हॉस्पिटल में गए, जब भी पैसों का तंगी होता है। और आपका मौत हो गया, मट्टी का कार्यक्रम करना, उसके भी आपके पास पैसों की तंगी होता है। क्यों? आपको मालूम है पैसा चाहिए, लेकिन उस पैसों के लिए आप ढूंढे नहीं है, क्योंकि आपका एक कुछ क्लियर नहीं है। चल रहा है बोल तो भीड़ में बकरे जाते हैं, वैसे ही हमारा जीना चल रहा है। आज बात करता हूँ स्वामी विवेकानंद, मालूम है? आज उनका क्या है? जयंती है। आज और एक का जयंती है, जीजा माता। इनका स्टोरी पढ़िए, वो कुछ करिए थे, उनके अंदर एक जिंदगी में रखे, चाहे वो 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल जिए नहीं है, लेकिन जितने साल जिए कुछ करके जिए। अपने भी जीवन का एक मकसद रखो, अपना कुछ भी हो, मैं बोलता हूँ दुनिया के लिए करो या खुद के लिए करो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके सामने रखो। जब तक आपके सामने कुछ चीज नहीं दिखता, जब तक आप उसको मान नहीं सकते। जब तक आपको विचार नहीं आता, साड़ी नहीं खरीदी करने जाते, आप जाएंगे? आपको जब तक विचार नहीं आता, जब तक आप वड़ा पाव नहीं खाते। मन में आया तो ही ना खाएंगे, नहीं आया तो खाते, मन में आया तो ही ना कपड़ा खरीदते। सही बात है। फिर जब भी आपके मन में आने का चीज को क्या चाहिए, आपको पहला अभी क्लियर करो। जब पैसा आने के बाद करने का सोचो मत, पैसा तो आएगा, लेकिन आप रखना है पहला टारगेट। आपके पास जो चीज नहीं है, रिसोर्सेस को ढूंढो मत, आपको चाहिए मेरे को, तो आपको यूनिवर्स है पूरा, आपको उस चीज को पूरा कराने में पूरा मदद दे देता है। लेकिन अपने अंदर करने का, सोचने का जज्बा, हिम्मत रखो। इसीलिए मैं आपसे पहले भी बताता हूं, आप ड्रीम नहीं लिखे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चाहे आज मेरे पास आकर 2 घंटे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बस उतना ही। 2 घंटे, आज एक दिन, आज मैं बताया जो भी बात आपको कल शाम तक अच्छा रहता, परसों सभी भूल जाते। क्यों? आपका कोई मकसद नहीं है। मेरे मैडम बोली, मेरे सर बोले, आकर बैठा, हो गया, थोड़ा सीखे, फिर बस। क्योंकि जल का इतना बताया, कल मैं पूरा बताने को पूरा दिमाग में है, लेकिन आज कल मैं 2 घंटे बाद के सुबह अभी 2 मिनट में खत्म करेंगे लोग। क्यों? पूरा 70% हमारे दिमाग से एरेज हो जाता है। एरेज मतलब मालूम है? निकल जाता है। अगर मैं कल नहीं परसों बात किया और 2 दिन के बाद पूरा 90% एरेज हो जाता है। इसीलिए हम नोटबुक में नोट करना बोलते हैं, उसको रिवाइंड हो जाता है। जब वो चीज के बारे में लिख लिए तो हमको समझ में आता है, यार उस दिन एक टॉपिक में बात की है। ऐसा नो? इसीलिए अपना जीवन का पहला एक सपना रखो, एक ड्रीम रखो
चाहे आप कुछ भी करना है, लेकिन ड्रीम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो आपको बड़ा सपना छोटा सोच रहे हैं, तो आप 100% आप गलत कर रहे हैं। छोटा सोचने वाला कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। 10,000 20,000 की जिंदगी में क्या होता है बताइए मेरे को, होता है? 20,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जस्ट हम 8 दिन का ट्रिप जाकर आए तो हमको खर्चा हुआ 20-25 हजार रुपए अकेले का। कितने का? सिर्फ 8 दिन का ट्रिप के लिए। और वो भी अकेला ही, 4-5 लोग नहीं गए। अगर 4-5 लोग गए तो 1 लाख हो गया, हो गया नहीं? फिर आज मार्केट में पेट्रोल का रेट कितना है? 91-92 रुपए है। तो इंसान 2000 साल में भी 10,000 के लिए काम किया। आज से 20 साल पहले देखो कितने रुपए काम किया में। जब 2000 साल में शायद आप लोग है, शायद आपका जब भी शादी होकर नया नया होकर रहा था, राइट? सही है। तो 2000 की उम्र में कितना विचार करते थे पेमेंट? कितने का कमाते थे, कितने का सोचते थे? हाँ? 2000 का उम्र में, 2000 साल में, आज का नहीं बोल रहा हूं। 2000 का ईयर हुआ, अगर आपके घर में अगर कोई जेंट्स काम करना है तो कितने का पेमेंट का विचार करते थे? हाँ? कितने का? आज कौन सा साल चल रहा है? 2021। आज कितने का कमाने जा रहे हैं? 10,000। कितना कमाने जा रहे हैं सर? हाँ? 10,000। क्या 20 साल बीत गया। जब 2000 का उम्र में बात किया तो पेट्रोल का कीमत कितना है? 40 रुपए कितना है, राइट? जब गेहूं का बात किया तो कितना है केजी? 10 से 12 रुपए तक है। जब 2000 की उम्र में आप कुछ भी करना है तो कितना था? आज 2021 हुआ तो आज कितना हुआ पेट्रोल? गेहूं कितना हुआ? और बहुत सारी चीज में बात करता तो बहुत है। तो इसका रेट दुगना तिगुना हो गया। तो हमारा सोच क्या वही 10,000, वही 10,000। हमारा खर्चा बढ़ रहा है। मैं बोलता हूँ दिवाली को आप कपड़ा लेने गए तो दिवाली का फरार बनाने गए तो कम से कम कितना खर्चा चाहिए? 5,000 मिनिमम हो जाता है। आप कम से कम बनाने गए तो भी होता ही नहीं। फिर अगर आपके कोई फेस्टिवल हो गया, कोई शादी आ गया, कोई कार्यक्रम हो गया, क्या उससे आपका एडजस्टमेंट होता है? फिर अभी भी आप 10,000 का क्यों सोच रहे हैं? आपका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गए, क्या आपका इनकम सर्किल को बढ़ाना विचार नहीं करते? उस समय जो विचार है आज भी वो विचार क्यों रखते हैं? 10,000 की जगह 1 लाख क्यों नहीं सोच रहे आप? हमारा नसीब नहीं है, हमको कौन देता है 1 लाख रुपए? सही है, सही है। मैं बोलता हूं अगर आप 1 रुपया कमा सकते तो 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। आप 1 रुपया कमा सकते हैं तो 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं? पूरा वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं। कितने दोस्तों? 800 करोड़ लोग में 10 करोड़ लोग अरबपति है। कितने करोड़? 10। बिलियनियर है। बिलियनियर 1 बिलियन मतलब कितने कोटि मालूम है?
अमेरिकन का 1 बिलियन इंडियन के कितने करोड़ की मालूम है? 1 बिलियन आकर इंडियन में 7,600 करोड़ का बराबर है। एक अमेरिकन बिलियन डॉलर इंडियन करेंसी में 7,600 करोड़ का है। वैसे लोग कितने लोग हैं? कितने लोग? क्या ये 10 करोड़ लोगों को और बाकी लोगों को भगवान 10 करोड़ लोगों को अलग बनाया, या बाकी 790 करोड़ लोगों को अलग बनाया? 10 करोड़ लोगों को 24 तास की जगह 50 तास दे दिया? 10 करोड़ लोगों को 2 हाथ की जगह 4 हाथ दे दिया? 10 करोड़ लोगों को दिमाग को 950 ग्राम की जगह 10,000 का ग्राम का भेजा दे दिया? मेंदू बड़ा कर दिया? इसको जो दिया था वही हमको भी दिया था। फिर ये इंसान कर पाया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या कभी अपने आप को सवाल नहीं कर सकते? कभी अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर लिए? अगर ये इंसान 10 करोड़ लोग महीने का लहाजे को कमा रहे हैं, वारन बफेट मालूम है? वो आज उसका सेकंड का 1 लहजे का कमाई 300 करोड़ कितना है? कितना? 1 लहजे का कमाई 300 करोड़ से ज्यादा है। 1 लहजे का। अंबानी का भी 1 लहजे का कमाई कम से कम 5 से 10 करोड़ है। और इससे ज्यादा कमाई है टाटा वाले का है, लेकिन टाटा वाले इसीलिए ऊपर नहीं है, 70% पैसा लोगों को दान कर देता है। अंबानी से अमीर बचे टाटा है, लेकिन टाटा क्या करता है? द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स हेल्प यू एंडलेसली। इस फिलॉसफी को फॉलो करता है टाटा वाले। क्या इन लोगों में, 10 करोड़ लोगों में और बाकी लोगों में यही फर्क है? 10 करोड़ लोग सोचे बड़ा, जब वो कुछ बड़ा कर पाए, और बाकी 790 करोड़ लोग सोचे हमसे नहीं हो सकता है। हम किस काम के नहीं है, हम इस काम के हैं दूसरों की जिंदगी, दूसरों के जीने में दूसरों को अमीर बनाना है। मेरा काम है कि एक अच्छा पढ़ाई करना है। मेरे मम्मी पापा मेरे को बोले बेटा तो इंजीनियर कर, जाकर एक दिन से गुलामगिरी कर, तो अच्छा इंजीनियरिंग कर, डिप्लोमा किया, बीई किया, एमटेक किया, करने के बाद क्या किए? एक के बाद जाओ अपना टैलेंट पूरा जिंदगी 20,000 के लिए गिरवी रखता हूं। क्या यही कर रहे हम? अपना वैल्यू हमको समझ में नहीं आता। मैं किसी को बोला है, सर मैं आपको पूछता हूं, आप पे एक हाथ का खांदा निकाल कर मेरे को दे दो, मैं आपको 10 करोड़ देता। कितने लोग देने तैयार है? अगर आपका एक खांदा 10 करोड़ को लेने को तैयार नहीं, फिर आपका पूरा जिंदगी 20,000 के लिए दूसरों को क्यों दे रहे हैं? अपना पूरा टैलेंट वो इस्तेमाल कर ले रहा है, वो अमीर बन रहा है, लेकिन हम सर मेरे को छुट्टी दे दो। जितने भी लोग काम करेंगे छुट्टी चाहिए, मैं बोला हूं, एक 8 दिन का उसका कार्यक्रम है, घर में फंक्शन है, तो छुट्टी देना है तो पहला बोलता है सुपरवाइजर को जाकर मिल। पहला सुपरवाइजर बोलता है जाकर ऑफिस में बात करो, वो ऑफिस वाला बोलता है एचआर डिपार्टमेंट से बात करो, एचआर डिपार्टमेंट बात करती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाओ, सर मेरे घर में कार्यक्रम है, वो अपॉइंटमेंट 10 बजे, सर का आपका लेटर दिया, सर आपको फोन करेंगे, अब बुलाएंगे जब आना है अंदर, नहीं तो जब तक आना। अगर आपको मुलाकात करने मौका नहीं मिला तो क्या करते हैं? सॉरी आपका छुट्टी कैंसिल करेंगे। क्या हम उसको गाली देंगे? थोड़ी देर देते, बाद में अगर काम छोड़ना भी मन आया तो आप क्या विचार करते हैं? अरे यार मैं काम छोड़ दिया तो मार्केट में फिर काम मिलना मुश्किल है। उसी जिंदगी में सर 8 दिन है, 4 दिन छुट्टी दे दो, अभी 4 दिन का छुट्टी लेकर आएंगे, पूरा सिर्फ बॉडी इधर आता है, लेकिन क्या
ये हमारा बॉडी हम पैदा किया भगवान, क्या इसके लिए पैदा किया? दूसरों की गुलामगिरी करने में। अपना टैलेंट पूरा अपना जितना सीखे वो अपना दूसरों को बेचने के लिए पैदा किया। बताइए फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? हम खुद क्यों नहीं बन सकते अमीर? हम खुद क्यों नहीं बन सकते हैं? एक बार सोचो, कोई भी इंसान करोड़पति पच में पैदा हो, जैसे मां के पेट में से करोड़पति नहीं बना। वो मेहनत करके नीचे नीचे, अभी माइक्रोसॉफ्ट का बोलता हूं, कौन है? बिल गेट्स। कौन सा हाल से चालू किया? वो छोटा एक रूम में से चालू किया, लेकिन वही माइक्रोसॉफ्ट आज वर्ल्ड में है। बिल गेट्स वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट पर्सन में दूसरा नंबर पे आता है। क्या किया? वो सिर्फ उसके अंदर का एक विचार को काम करने लगा, उस विचार के ऊपर ही बहुत एग्जाम्पल आप हिस्ट्री देख लो। बहुत सारे लोग, अभी कुछ भी चल रहा है, सलगर चाय बंद किया मैंने पुणे में, वो एक चाय है, एवले चाय है। वो पुणे में चाय, एक खोटरी वाला, उसका एवले चाय वाले का आपको स्टोरी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आज उसका फ्रेंचाइजी पुणे में लगभग 500, 100, 200 फ्रेंचाइजी है पुणे सिटी में ही। आप वो घर में बैठे बैठे महीने का दिन का कमाता कम से कम 50 लाख रुपए, सिर्फ चाय का दुकान से चालू किया। अभी कोल्हापुर में सलगर चाय आप देखते हैं, मालूम है? मतलब क्या किए थे? जो भी लोग आज अल्ट्रा अमीर बने, वो अकेले काम करने से अमीर नहीं बने। बने क्या? बने सिर्फ वो लोग अपना टाइम को दूसरों से मल्टीप्लाई करके अमीर बने। दो तरीके से इनकम रहता है, आपको मालूम है? एक लीनियर इनकम, एक लेवरेज इनकम। क्या इसको जानते हैं आप? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा बोलकर। दोस्तों इसी का वीडियो कंटिन्यू पार्ट 2 आपके सामने जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। और इस वीडियो को एंड करने से पहले सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर अपने दोस्तों को, परिवार में फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। सब्सक्राइब इसीलिए करो दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फाइनली, थैंक यू दोस्तों।